یہ کتاب 1874 صفحات پر مشتمل ہے. تو آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 18 صفحہ نمبر 177 سے. تو تم میرا خیال رکھو گی بالکل، اس نے کاندھے اچکاتے ہوئے کہا. تو جسپال نے ایک دم سے اسے پکڑ لیا. شاید وہ اس کے لیے تیار نہیں تھی، اس لیے قابو میں آ گئی. جسپال نے اسے نیچے گرا دیا اور گہری آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا. ہرپریت نے اپنی آنکھیں بند کر لی تو جسپال نے ایک طویل مہر اس کے لبوں پر لگا دی. نیا پیراگراف. صبح کا سورج طلوع ہونے میں تھوڑا وقت تھا جب میں اماں اور سونی کو لے کر نور نگر پہنچ گیا. اماں آتے ہی یوں کچن میں گھس گئی جیسے وہ یہاں سے گئی ہی نہ ہو، جبکہ سونی اپنے ساتھ لائی ہوئی چیزوں اور کپڑوں کو اپنی اپنی جگہ رکھنے لگی. میں نے کار گھر کے باہر ہی کھڑی رہنے دی اور خود بائک لے کر ڈیرے پر چلا گیا. ویدا اپنے کام میں مصروف تھا. اس نے اپنے ساتھ ایک اور بندے کو لگایا ہوا تھا. میں گیا تو حال احوال کے بعد کہنے لگا، جا اندر جا کر آرام کر، اب میرے ساتھ یہ کام کر لیا کرے گا. میں نے تجھے پہلے ہی بے فکرہ کر دیا ہے. ٹھیک ہے یار، پر میں آرام گھر میں ہی جا کر کروں گا. تو مجھے دودھ ڈال دے تو میں جاؤں. میں نے بھی وہاں بیٹھنا مناسب خیال نہیں کیا. تو چاہے جہاں آرام کر، لیکن اب بہت محتاط ہو جا، اس نے لاپرواہی والے انداز میں کہا. تو میں چونک گیا. تب میں نے پوچھا، ایسے کیوں کہہ رہا ہے؟ کل سے اور رات بھی بندے پھرتے رہے ہیں یہاں، پر اب میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ کس کے بندے تھے یا محض چور اچکے تھے. مجھے جب معلوم ہوا تو 2-4 فائر نکالے تھے میں نے، لیکن بعد میں پھر سکون رہا. بیدے نے تفصیل سے بتایا اور پھر دودھ ڈالنے لگا. جب وہ دودھ ڈال چکا تو سیدھا ہو گیا. اچھا کیا تو نے مجھے بتا دیا، میں نے سوچتے ہوئے کہا. جمالے، یہ چھیڑ جو پڑ گئی ہے اور اس میں تو خود بھی بہہ گیا ہے. اب مجھے نہیں لگتا کہ یہ چند دن کی کہانی ہوگی، اس لیے تیرے جو بھی ٹھکانے ہیں انہیں فوراً بدل لے. دشمن کا کیا اعتبار؟ اس نے مجھے صحیح صلاح دی. بیچارہ نہیں جانتا تھا کہ یہ کہانی میں نے خود شروع کی ہے اور میں نے ہی اسے انجام تک پہنچانا ہے، اور پھر کہانی کیا سے کیا ہو گئی ہے. مگر جو اس نے مجھے مشورہ دیا تھا وہ بہرحال معقول تھا. میں نے سر ہلا دیا، دودھ کا برتن اٹھایا اور ڈیرے سے نکلتا چلا گیا. میں گھر پہنچا تو صحن میں دھری چارپائی پر چھاکا لیٹا ہوا تھا. میں نے بائک کھڑی کی، دودھ کا برتن اماں کو پکڑایا اور اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا. وہ یوں ہی لیٹا رہا تو میں نے اس کی کمر پر دھپ مارتے ہوئے کہا، کوئی رات نہیں سویا جو یوں مردوں کی طرح پڑا ہے؟ نہ، یہ تو پھر سونی کو لے آیا ہے، اس نے ویسے ہی پڑے پڑے کہا. تو میں نے دھیمے انداز میں کہا، مجھے معلوم تھا کہ تو مجھ سے یہی سوال کرے گا. آرام سے ناشتہ کر اور پھر سکون سے بتاتا ہوں کہ میں اسے یہاں کیوں لایا ہوں. دیکھ، اگر تیرا کوئی اس سے پیار محبت والا معاملہ چل پڑا ہے تو بھی مجھے ابھی بتا دے. میں تمہارے راستے کی دیوار نہیں بنوں گا، بلکہ تجھے مشورہ دوں گا کہ تو اس کے پاس چلا جا اور کاندھے پر پرنا رکھ کے. وہ غصے میں پتہ نہیں مزید کیا بکتا، مگر اس سے پہلے ہی میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، بکواس ہی کرتا جائے گا یا جو میں کہہ رہا ہوں اس پر یقین کرے گا؟ یقین تو تیرا ہی کرنا ہے جمالے، اس نے اسی طرح لیٹے لیٹے جواب دیا. تو چل آ، پھر پہلے تجھے ساری بات بتا دوں، پھر آ کے ناشتہ کرتے ہیں. میں نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، نہیں، مجھے اتنی بھی جلدی نہیں ہے، اس نے کہا اور اٹھ کر بیٹھ گیا. تبھی میں نے بھیدے کے شک کے بارے میں اسے بتایا تو وہ سر ہلاتے ہوئے بولا، پیر زادوں اور سرداروں کی لڑائی تو چھڑ چکی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر سردار ابھی ہچکچا رہا ہے. علاقے کے جو دوسرے زمیندار ہیں ان میں سے 1-2 ہی ابھی غیر جانبدار ہیں، باقی سارے ادھر یا پھر ادھر ہو گئے ہیں. ایک ہلچل سی مچ گئی ہے، ممکن ہے کوئی کسی داؤ پر ہو. ظاہر ہے ہر بندے کو اپنا تحفظ کرنا ہے. سیاسی معاملات تو ہیں ہی، ان کی اتنی اہمیت نہیں، اصل بات لوگوں کے بغاوت کر دینے کی ہے. یہی میں چاہتا ہوں. میں نے سوچتے ہوئے کہا، ہمارے اس علاقے کے ہر گاؤں میں اور ہر بستی میں وہاں کے زمیندار یا جاگیردار کہہ لو،
इसके खिलाफ कुछ न कुछ बंदे जरूर मौजूद हैं। वो खामोश हैं क्योंकि ना उन्हें सहारा है, ना ताकत है, ना ही उनके पास वसाइल। इन सब को एक जगह इकट्ठा करना होगा। यार, ये इंसानी फितरत है कि वो ताकत की तरफ अपना झुकाव करता है। इन्हें किसी दूसरी तरफ ताकत दिखाई दी तो वो उधर ही हो जाएंगे। इसमें बड़ा वक्त लगेगा। तू ये मत सोच, इस मंजिल तक पहुंचने के लिए अभी बड़ा वक्त पड़ा है और बहुत कुछ करना होगा। जब मैं तुझे सोहनी के यहाँ आने के बारे में बताऊंगा ना, तो फिर तुम मुझे बताना। समझ लो सारा खेल ही बदल गया है। लफ्ज अभी मेरे मुंह में ही थे कि सोहनी किचन से निकली। उसके हाथ में ट्रे था। मैं हाथ मुंह धोने के लिए उठ बैठा तो वो सवालिया अंदाज में बोली, जमाल, नाश्ता तो कर लो, मैं हाथ धोआऊं। मैंने आहिस्तगी से कहा तो वो तेजी से बोली, तुम यहीं बैठो, मैं धुलवा देती हूँ हाथ। ये कहते हुए उसने ट्रे चारपाई पर रखी जहां छाका अब उठ बैठा था। वो बड़े गौर से सोहनी को देख रहा था। उसकी आंखों में तजस्सुस भरी हैरत तैर रही थी। वो ट्रे रखकर पलट गई तो मैं पाइनती की तरफ चारपाई पर बैठ गया। तभी छाका बोला, यार, क्या जादू कर दिया है तूने इस पर। ऐसी हिदमत। नाश्ता कर ले, फिर बताता हूँ, वरना ये खाना पीना यहीं भूल जाएगा। मैंने फिर आहिस्तगी से कहा तो वो बेचैन होकर मेरी तरफ देखने लगा। सोहनी आई और मेरे हाथ धुलवा कर चली गई। जब हम नाश्ता कर चुके और चाय की प्यालियां हाली करके रख दी तो मैंने बाहर वाले कमरे की तरफ जाने का इशारा करके उठ गया। छाका भी मेरे पीछे पीछे आ गया। इत्मीनान से बैठ जाने के बाद मैं सोहनी की बताई हुई बात उसे बता दी तो हैरत की इंतहा पर बोला, ये तो गजब हो गया है जमाले। सोहनी सरदार शाहदीन की बेटी है। हाँ छाके, गजब ही हुआ है। अब बता, मेरा उसे यहां लाना बनता है कि नहीं? लेकिन अगर ये सब झूठ हुआ तो तेरी कहानी तो फिर? वो तशवीश से बोला, तो फिर क्या होगा? एक बार तो हलचल मच जाएगी ना। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, यार, सियाने कहते हैं कि ऐसा कोई दावा नहीं करना चाहिए जिस पर बात देनी आ जाए। हम ये कैसे साबित करेंगे? उसने उलझते हुए पूछा। यार, साबित जब होगा सो होगा। मुझे साबित करने की कोई जल्दी नहीं है। तू देखता जा मैं करता क्या हूं। मैंने हंसते हुए कहा तो छाका चंद लम्हे खामोश रहा, फिर चौंक कर बोला, बेदे ने जो बंदू वाली बात बताई है, अगर इसका शक दुरुस्त हुआ तो हमें अपना बंदोबस्त करना चाहिए। हाँ, बंदोबस्त तो होना चाहिए। अब तो बंदोबस्त हर वक्त रखना होगा। हम सिर्फ सरदारों के साथ ही नहीं खेल रहे, हमें पीरजादू से भी उतना ही खतरा है। अब तो इलाके के लोग भी इस खेल में शामिल हो चुके हैं। मैंने तहम्मुल से इसे समझाते हुए कहा, तू चल फिर उठ जा, दोस्तों को इकट्ठा करते हैं, कोई इधर उधर की खबर लेते हैं, कौन किसके बारे में क्या कर रहा है। यूं ही बैठे रहने से क्या होगा? छाके ने उठते हुए कहा, वो तो करना है, अभी निकलते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कल दिलबर के सोइम की दुआ है, इस पर पूरे इलाके के लोग आएंगे। मेरा ख्याल है तब तक न पीरजादे कुछ कर सकेंगे और न सरदार, वरना वो इलाके में मजीद गंदे हो जाएंगे। मैंने अपना ख्याल जाहिर किया। ये सिर्फ तू सोचता है ना, जिसने अपना काम दिखाना है वो दिखा जाएगा। हो सकता है मलिक सज्जाद के बंदे आ गए हों, या सरदार ही कोई और खेलना चाहता हो, वही जो हमने उनका साथ किया। छाके ने एक पहलू के बारे में तवज्जो दिलाई तो मुझे ख्याल आया, यार, अब तक रंधावे ने भी कोई राब्ता नहीं किया। मुमकिन है बाहर से मामला ही कुछ दूसरा हो गया हो। इसलिए कह रहा हूं ना कि बाहर निकलेंगे तो आसपास की खबर मिलेगी। छाका चारपाई से उठ गया। हाँ, वो तो है, चल दिलबर के घर ही चलते हैं। वहां बाहर लोग फातहानी के लिए बैठे होंगे, वहां से कुछ मालूम हो जाएगा। मैंने कहा और उसके साथ ही उठ गया। धूप चढ़ आई थी जो सारे सहन में फैली हुई थी। चंद मिनटों में छाके ने मेरा बाइक निकाला और हम उस पर सवार होकर दिलबर के घर की जानिब चल पड़े। दिलबर के घर के बाहर काफी सारे लोग बैठे हुए थे। उनमें कुछ गांव के थे
اور ادھر ادھر کے علاقے سے بھی آئے ہوئے تھے. وہ سبھی زمین پر بچھی ہوئی دریوں پر بیٹھے تھے. چھاکے نے ایک طرف بائک روکی. میں اترا اور جا کر ان میں بیٹھ گیا. فاتحہ پڑھی اور پھر حسب معمول باتیں ہونے لگی. میں نے محسوس کیا کہ کچھ لوگ میری طرف بڑی گہری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں. وہ گاؤں سے باہر کے ہی لوگ تھے. چھاکا اس وقت تک دلبر کے گھر کے اندر چلا گیا تھا کیونکہ اس وقت تمام تر معاشی معاملات اس کے سپرد تھے. میں خاموشی سے وہاں بیٹھا رہا اور لوگوں کی باتیں سنتا رہا. وہاں یہ شکوہ موجود تھا کہ پیرزادے آ کر چلے گئے. علاقے کے دوسرے زمیندار بھی کسی نہ کسی طرح انہیں پرسہ دینے آئے، لیکن اپنے ہی گاؤں کے سردار نہیں آئے. سردار شادین نہیں آیا. نہ صحیح، لیکن شاہ زیب کو ایک بار ان کے ہاں آ جانا چاہیے تھا. میں نے وہاں کوئی بات نہیں کی اور نہ ہی کرنے کی ضرورت تھی. چاہے دبی دبی زبان میں ہی صحیح، سرداروں کے خلاف لوگ بولنا شروع ہو گئے تھے. لوگ آتے جاتے رہے اور میں وہیں بیٹھا رہا. دوپہر ہونے کو آ گئی تھی جب سرداروں کا خاص ملازم فخر وہاں آ گیا. روایت کے مطابق اس نے فاتحہ پڑھی اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا. لوگوں نے دبے دبے لفظوں میں اس سے سرداروں کے نہ آنے کا گلہ بھی کیا. اس نے بتایا کہ بڑے سردار تو شہر میں ہیں اور وہاں بہت مصروف ہیں، جبکہ شاہ زیب لاہور گیا ہوا ہے اپنے داخلے وغیرہ کے سلسلے میں. وہ صریحاً جھوٹ بول رہا تھا. میری اطلاع کے مطابق دونوں حویلی میں تھے. نہ جانے کیوں میرے دماغ میں اس کا جھوٹ کھنکنے لگا. وہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟ ممکن ہے سردار شادین چلا گیا ہو. ملک سجاد کی حالت خاصی خراب تھی. مجھے یہ سوچ آنے لگی کہ اگر فخر درست کہہ رہا ہے تو پھر کم از کم سرداروں کی طرف سے خطرے والی بات نہیں ہے. میرے بارے میں جو لوگ پوچھتے پھر رہے ہوں گے وہ کوئی اور ہوں گے. لیکن اگر فخر جھوٹ بول رہا ہے تو پھر مجھے کسی نئی صورتحال کے لیے پوری طرح تیار رہنا چاہیے. میں یہی سوچ رہا تھا کہ ایک دم مجھے خیال سوچا، کل آنے سے پہلے ہی ہلچل مچا دی جائے. میں فخرو کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگا. کچھ دیر بعد وہ اٹھ گیا. انہی لمحات میں جبکہ وہ آہستہ آہستہ اٹھ رہا تھا میں تیزی سے اٹھا اور جوتے پہن لیے. فخر آرام سے جوتے پہن کر چند قدم ہی چلا تھا کہ میں اس کے برابر جا کے بولا، فخرو، سردار شادین تو گھر میں ہے، تو نے وہاں جھوٹ کیوں بولا؟ میرے یوں کہنے پر اس نے طنزیہ انداز میں مجھے دیکھا اور پھر بولا، تجھے زیادہ پتا ہے یا مجھے، جو میں ہر وقت حویلی میں رہتا ہوں؟ حویلی میں رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ تم جھوٹ ہی نہ بولو. خیر ایک بات تو بتاؤ فخرو. بولو. اس نے مجھے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا. تو میں نے مسکراتے ہوئے کہا، جوانی میں سردار نے خوب دولت لٹائی ہوگی، طوائفوں کے پاس بھی جاتا ہوگا. سردار صاحب نے دولت لٹائی یا طوائفوں کے پاس گیا، تمہیں اس سے کیا لینا دینا؟ اس نے بغور میری طرف دیکھتے ہوئے کہا. تو میں نے جذباتی ہوتے ہوئے کہا، بہت کچھ لینا دینا ہے فخرو، بہت کچھ. اتنا کچھ کہ تم اور تیرے سردار تصور بھی نہیں کر سکتے. خیر تم جاؤ اور جا کر بڑے سردار صاحب سے کہو انہیں میرا پیغام دے دو کہ اس کی بیٹی میرے پاس ہے. اور کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ سردار صاحب کی کوئی بیٹی نہیں. یہ تمہیں بھی معلوم ہے اور سارے گاؤں کو. بکواس بند کر فخرو اور میری بات سن. میں نے اچانک ہی بناتے ہوئے کہا تو وہ میری طرف الجھے ہوئے انداز میں دیکھ کر بولا، کہو. اس کی بیٹی ہے، ناجائز بیٹی. تفصیل معلوم کرنی ہو تو ملک سجاد سے پوچھ لے جو اس کی بیٹی کا عاشق تھا، جو تیرے سردار کا گہرا یار ہے. پھر بھی پتہ نہ چلے تو مجھ سے پوچھ لینا. لیکن تم نے نہیں آنا بلکہ اپنے سردار کو بھیجنا. میں نے غصے سے کہا تو وہ حیرت سے میری طرف دیکھ کر بولا، جمال تم سچ کہہ رہے ہو؟ ہاں سچ کہہ رہا ہوں. کل صبح تک کا وقت ہے تیرے سرداروں کے پاس، ورنہ کل یہیں جب دلبر کے لیے پورے علاقے سے لوگ آئیں گے
तो उनमें सरदार शाह दीन की बेटी भी आ जाएगी, और अगर यहाँ ना आई तो पूरे इलाके की पंचायत बुलाकर उसमें वो बताएगी कि वो किस तरह शाहदीन की बेटी है। जाओ और जाके बताओ उसे, वक्त बहुत कम है। मैंने तेज लहजे में कहा और पलटकर बाइक लेने के लिए चल दिया। फखरू चंद लम्हे वहीं हैरत से गुम खड़ा रहा, फिर तेज कदमों से चल पड़ा। मुझे उस वक्त अचानक ही ये ख्याल आया था कि इसने अभी तक मलिक सज्जाद के बारे में नहीं पूछा कि वो इस वक्त किस हालत में है। उसे होश आ गया है या अभी तक बेहोश है, खतरे में है या खतरे से बाहर। मैं चाहता था कि सोनी के बारे में मलिक सज्जाद ही उसे बताए, ताकि उसे पूरी कहानी खुद ब खुद मालूम हो जाए। मुझ पर एतबार करते हुए शायद उसे वक्त लगे। मैंने छाकी का इंतजार किए बगैर अच्छू करियाने वाले की दुकान पर जाकर फोन करने का सोचा। 2 गलियां पार करके उसकी दुकान थी। मैंने बाइक स्टार्ट की और उस तरफ बढ़ गया। दुकान पर चंद ग्राहक खड़े हुए थे। मैंने इंतजार करना चाहा, मगर अच्छू फौरन ही मेरी तरफ मुतवज्जा होकर बोला, जी भाई, फोन करना है, वही फोन नंबर मिला दे। मैंने कहा तो उसने सब कुछ छोड़ छाड़ कर फौरन ही नंबर मिला दिए और फिर मुझे रिसीवर थमा दिया। मैंने रिसीवर को कान से लगाया और राब्ता हो जाने का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर के बाद पिक कर लिया गया, मगर दूसरी जानिब से आवाज मलिक सज्जाद की नहीं थी। तभी मैंने कहा, मुझे मलिक सज्जाद से बात करनी है। जी, उनसे बात नहीं हो सकेगी, वो इस वक्त अस्पताल में है। दूसरी तरफ से उसे काफी हद तक अफसरदगी में कहा गया। तो मैंने मसनूई हैरत से कहा, हैर तो है, क्या हुआ है उन्हें? एक हादसा हो गया है, इसमें इन्हें शदीद चोटें लगी हैं, जख्मी भी हो गए हैं। ओह, खतरे वाली कोई बात तो नहीं? मेरा मतलब है वो ठीक तो है ना? मैंने अपने लहजे को जानबूझकर तशवीश ज़दा कर लिया। खतरे वाली बात तो है, लेकिन बहरहाल अब वो होश में है। डॉक्टर ने बातचीत और मिलने मिलाने से मना कर रखा है। 2-4 दिन में उनसे राब्ता हो जाएगा। वैसे आप कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि खामोशी से फोन रख दिया। मुझे मजीद बात करने की जरूरत ही नहीं थी। अच्छू अपने ग्राहकों की तरफ मुतवज्जा था। मैंने इसे मुखातिब करना मुनासिब ख्याल न किया, इसलिए पलटा और बाइक की तरफ बढ़ने लगा। तब अचानक बाएं जानिब से चंद लोग बढ़े और मुझे पता ही न चला कि वो कब मुझ पर पल पड़े। बस एक ही निगाह में उन्हें देख पाया था। ये वही थे जो दिलबर के घर के सामने कुछ देर पहले मैंने देखे थे। उनके हाथों में लाठियां, डंडे और हाकियां थी। उनमें से कोई चेहरा भी नूर नगर का नहीं था। मुझे नहीं याद कि वो कितने थे, बस अंदाजा है कि 7 से 10 तक होंगे। पहली हाकी की ज़रब मेरी बुश्त पर कांधों के पास लगी, फिर हाकियों, डंडों और लाठियों की यलगार होगी। मैं इनके हिसार में था। इनसे बचने का यही तरीका मेरे जहन में आया कि सबसे पहले मैं इनका हिसार तोड़ दूं, फिर जब वो सामने आ जाए तो मैं कुछ कर पाऊं। मैंने दोनों हाथ अपने सर पर रखे और एकदम जमीन पर बैठ गया। फिर अगले ही लम्हे उनके दरमियान से होकर गली की जानिब बढ़ा। मैं इनका हिसार तोड़ने में कामयाब हो गया। ऐसे में एक ने लाठी मारने के लिए बुलंद की तो मैं उस पर जा पड़ा। दोनों हाथों के पूरे जोर से उसकी लाठी को एक झटका दिया। तब तक 2-4 ज़रबें मेरे लग गई थीं। लाठी मेरे हाथ में आ गई तो मेरे अंदर एक हौसला आ गया। मैं चाहे अब वार करने के काबिल नहीं था, लेकिन अब कुछ न कुछ दिफा तो कर सकता था। चंद मिनट तक मैं अपना दिफा करता रहा, लेकिन कब तक? मैंने लाठी को दाएं हाथ से बाएं में लिया और दाएं हाथ से अपना पिस्टल निकालना चाहा। यही लम्हा मेरे लिए खतरनाक साबित हुआ। अचानक ही 2-4 बंदों ने मुझे पूरी तरह से जकड़ लिया। मैंने इनके हिसार से निकलने के लिए जोर आजमाई करने लगा, मगर निकल ना सका। वो भी शहजोर लगते थे। ऐसे में एक कैरी डिब्बा उनके पास आ गया। उन्होंने आओ देखा ना ताओ मेरे पैरों की तरफ से पकड़कर मुझे उठा लिया। मैं समझ गया ये मुझे अगवा करके ले जाना चाहते हैं। मैंने पूरी कुव्वत लगाकर इनकी गिरफ्त से निकलना चाहा, मगर ना निकल सका।
तब तक कैरी डिब्बे का दरवाजा खुला और मुझे इसमें फेंक दिया गया। मेरे चोटें तो आई, मगर मैंने दूसरी तरफ का दरवाजा खोलकर बाहर निकलना चाहा। तब तक पिस्टल की नाल मेरी गर्दन पर आन लगी। अब ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं, आराम से पड़े रहो। जान से नहीं मारना चाहते, लेकिन अगर तुमने कोई हरकत की तो हम जिम्मेदार नहीं। एक सख्त लहजे की आवाज सुनाई दी तो मैं वहीं साकत हो गया। दर्द, जलन और टीसू से मेरा बुरा हाल हो रहा था। तब मैंने पूछा, कौन हो तुम लोग और क्या चाहते हो? चुपचाप पड़े रहो, अभी पता चल जाएगा। उसने कहा ही था कि कैरी डिब्बा चल पड़ा। मुझे शदीद झटके लग रहे थे और वो मुझ पर अपने पांव रखे हुए थे। मैं औंधे मुंह पड़ा हुआ था। मुझे नहीं मालूम कि डिब्बे में और कितने लोग थे। मुझे लगा जैसे मैं अपने हवास खो रहा हूं, लेकिन मैंने खुद पर काबू पर रखा। न जाने कहां कहां से चलते हुए तकरीबन आधे घंटे बाद कैरी डिब्बा रुक गया। इसका मतलब था कि मैं अपने इलाके से बाहर नहीं, यही कहीं हूं। तभी उस बंदे की आवाज सुनाई दी, अपने पैरों पर उठोगे या घसीट कर ले जाएं? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि कोशिश करके उठा तो मेरा बदन चीख चीख कर एहतजाज करने लगा। मैं उठा और कैरी डब्बे से उतरने से पहले नजरें उठाकर देखा। मेरे सामने सरदार शाह दीन का डेरा था। मुझ पर हमला होते ही न जाने क्यों मेरे लाशौर ने मुझे बता दिया था कि ये सरदारों के भेजे हुए ही लोग होंगे, और वो डेरा देखकर मुझे यकीन हो गया। न जाने क्यों उस वक्त मेरे अंदर एक इत्मीनान उतर आया था कि ये कम से कम मुझे जान से नहीं मारेंगे, बल्कि तशद्दुद करके मुझसे पूछताछ जरूर करेंगे। लेकिन सवाल ये था कि क्या फखरू इतनी जल्दी हवेली पहुंच गया? क्या उसने सोहनी के बारे में सरदारों को बता दिया था? ऐसा मुमकिन नहीं था। जब तक मैं अच्छू करियाने वाले की दुकान पर पहुंचा था, तब तक वो हवेली नहीं पहुंच सकता था। मुझे तो ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लगे होंगे, मगर उसे हवेली तक जाने में आधा घंटा चाहिए था। इसका मतलब है ये लोग पहले ही मेरी ताक में थे। भेदे की बात सच थी। अब यहाँ डेरे पर लाकर वो मुझसे क्या चाहते थे, ये तो वही लोग जानते थे। मैं सुकून से डेरे की जानिब चल पड़ा। जरा सी भी मुजाहमत नहीं की। गेट पार कर ड्योढ़ी अबूर की, फिर सहन से पहले ही दाईं तरफ के रो में बने हुए कमरे में से एक की जानिब बढ़े। हम बरामदे में से चलते हुए उस कमरे में गए, बाकी सब पीछे रह गया। 3 बंदे मेरी पुष्ट पर थे। सामने ही सोफे पर शाहजेब बैठा हुआ था, जो मेरी जानब तंजिया अंदाज में देख रहा था। मुझे बहुत अफसोस है जमाल कि तुझे यूं हाथ मुदारत करके यहाँ लाया गया, वरना तुम कहाँ आने वाले थे? फंकार हो ना, तुम्हें बहुत मान है खुद पर। ये कहकर उसने मेरी पुष्ट पर खड़े बंदे से कहा, इसका पिस्टल तो निकाल लिया था ना? जी, एक ही था, अब ये निहत्था है। ठीक है, शाहजेब ने कहा। मेरी तरफ देखकर फिर बोला, मैंने तुम्हें बहुत इज्जत देना चाहिए थी जमाल, मगर तेरे जैसे बेऔकात लोग इज्जत के काबिल नहीं हैं। तुझे तो उस दिन शूट कर देना चाहिए था, जब मेले से अगले दिन तुम हवेली में आकर कुत्ते की तरह भौंकने लगे थे। ये मैं ही था जिसे तेरी बाबा से वकालत की थी। मैंने बाबा से कहा था कि तेरे जैसे कुत्ते को मैं सुधार लूंगा, मगर बाबा सच्चे थे। उन्होंने कहा था कि नहीं, तुम सांप हो, डंग मारोगे, और तुमने साबित कर दिया। शाहजेब, बेऔकात मैं नहीं तुम हो। दूसरों के बाजू का सहारा लेकर, धोखा देकर वार करने वाले तो कुत्ते से भी बदतर है, और तुम मुनाफकत करते रहे। पता है, मर्द मुनाफकत नहीं करता, हेजड़ा करता है मुनाफकत, और तेरे जैसे कई हाजासरा मेरे खिलाफ साजिश करते रहते हैं। तू अगर मर्द का बच्चा है ना, तो मेरे हाथों में हाथ डाल। कुत्तों के गोल में क्यों खड़ा भौंक रहा है? मैंने उसे शदीद गुस्सा दिलाने के लिए इंतहाई तंजिया लहजे में कहा, तो वो एकदम से बावला हो गया। वो भन्ना कर कुछ कहने ही वाला था कि एकदम से सर्द पड़ गया। शायद उसे कोई सोच आ गई थी। उसने मुस्कुराते हुए बोला,
یہ चलित्र किसी और को दिखाना। अभी तेरे साथ बहुत कुछ करना बाकी है। मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता। फिर मेरी पुश पर खड़े उस बंदे से कहा, ले जाओ इसे और शाम होने तक इसका जोड़ जोड़ अलग कर दो। फिर पुलिस वाले खुद ही इसे पार कर देंगे। जब तक पुलिस वाले नहीं आते इसकी धुनाई होती रहनी चाहिए। शाहजेब, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन तुम मुझसे दुश्मनी की इब्तिदा खुद कर रहे हो। ये देख लो। इतना खुद कुछ ही करना जितना तुम सह सको। मैंने उसके चेहरे पर देखते हुए नफरत से कहा, तेरी औकात ही क्या दुश्मनी करने वाली। तेरे जैसा बंदा और हमारा दुश्मन, फजूल सोच रहे हो तुम। मैं चाहूं तो अभी तेरी सांस बंद कर दूं, मगर मैं नहीं समझता कि तुझ जैसे हकीर और घटिया बंदे को मैं मारूं। तेरे जैसे संपोलिए जब भी सर उठाते हैं हम उन्हें कुचल देते हैं। शाहजेब, मैं तुम्हें अब भी समझा रहा हूं, दुश्मनी मत कर वरना तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। इतना ही बोल जितने लफ्जों की तू कीमत अदा कर सकता है। बहुत ज्यादा बोल रहा है तू। इस बार मैंने ठंडे लहजे में सुकून से कहा, क्योंकि उस वक्त मैं शाहजेब के बारे में फैसला कर चुका था। बाबा ने उस दिन कह दिया था कि मैं तुझे मार दूं, और मेरी गलती थी कि मैंने तुझे नहीं मारा। मैं देखता रहा कि तू करता क्या है। तूने कुछ भी किया है अपनी औकात से बढ़कर किया है जमाले। ये कहकर उसने मुझे ले जाने का इशारा किया। तभी मेरे पीछे खड़े बंदे की गिरफ्त मुझ पर सख्त हो गई। उसने मुझे एक झटका दिया और कमरे से बाहर ले जाने के लिए धक्का दिया। तभी मेरे अंदर आग भर गई। इससे पहले कि मैं उस आग में खुद जल जाता, मैंने खुद पर काबू पा लिया। इस वक्त उन लोगों से भिड़ जाने का मतलब मेरी खुदकुशी थी। मैं किसी न किसी तरह कुछ वक्त लेना चाह रहा था। इन लोगों ने मुझे धक्के देकर वहां कमरे से निकाला और बाहर बरामदे में ले आए। बिलाशुबा उन्होंने मुझे कहीं बंद करके ही तशद्दुद करना था। मैं ज़हनी तौर पर शदीद से शदीद तशद्दुद के लिए तैयार हो गया। मैं ज्यादा से ज्यादा वक्त इसलिए लेना चाह रहा था कि अच्छू की दुकान से महज 2 गलियां पार दिलबर के घर में चाका मौजूद था और 2 गलियां दूर ही मेरा घर था। बीच चौराहे में इन लोगों ने मुझ पर हमला किया था और मुझे वहां से उठा ले आए थे। क्या गांव नूर नगर में कोई भी हलचल नहीं हुई होगी? क्या छाके को मालूम नहीं हुआ होगा? ऐसा मुमकिन ही नहीं था। वहां गांव में पता चल गया होगा, लेकिन इसमें शक किया जा सकता था कि उन्हें ये मालूम ना हो कि मैं कहाँ हूँ। चलते चलते अचानक मुझे ख्याल आया कि क्या मुझे तशद्दुद सहते रहना चाहिए और पुलिस का इंतजार करना चाहिए कि वो कब आए और मुझे लेकर पार कर दे। क्या मैं इतनी आसानी के साथ मौत के मुंह में चला जाऊंगा? क्या रंधावा भी अब भी तक मेरे साथ दोहरी चाल चलता आया है? एक तरफ उसने अपने ऑफिसर के साथ मिलकर मलिक सज्जाद और सरदारों को बता दिया कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं, और दूसरी तरफ उसने मुझसे सब कुछ करवाकर मुझे ही निशाना बनाने के लिए माहौल बना दिया। बिलाशुबा उसने अपनी बेइज्जती का बदला लिया था। इस वक्त पै दर पै मेरे जहन में ये सवाल आते चले जा रहे थे। मुझे लगा जैसे सारा माहौल ही मेरे खिलाफ साजिश कर चुका है। मायूसी थी कि बढ़ती चली जा रही थी। एक तरफ मैंने मलिक सज्जाद जैसे बंदे को मौत के मुंह में पहुंचा दिया था। ये ख्याल आते ही मेरे अंदर एकदम से हौसला उभरा। मैंने अपने साथ चलते हुए लोगों पर निगाह डाली। वो 3 ही थे, बाकी शायद कहीं और हों। अचानक मेरी निगाह एक ऐसे बंदे पर पड़ी जिसके हाथों में देसी साख्त की एक कारबीन पर पड़ी। तब ही मैंने लम्हों में फैसला कर लिया कि मुझे क्या करना है। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।